Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's session, I'm going to discuss 90 days study plan specifically created for your phase 2 preparation for RBI Grade B 2026 examination. Now, phase 1 plan I have already uploaded, and many of the students, many of the aspirants were asking, ma'am, please create plan for the phase 2 preparation, because yes, phase 2 is very important, because phase 2 preparation will actually determine that whether you are going to get the final selection or not, right everyone? So yes, so in today's video I have created this plan specifically for working professionals, but मैं ये कहना चाहूंगी कि even if you are not working professional, you can still follow this particular plan, and keeping in mind the fact that working professionals के बाद थोड़ा सा कम time होता है, so I have tried to create this plan in such a way कि आपको सिर्फ दिन में 3 hours a day ही देना पड़े, एंड उसके बेसिस पे ही आपका फेज 2 का एटलीस्ट 80 to 90% प्रिपरेशन हो जाए. Okay, so finally we are going to discuss this plan, and but before discussing this plan, I just want to say a few things. Working professionals के साथ क्या होता है, they feel कि मैम we don't have much time. Yes, obviously you don't have a lot of time, but the thing is, ठीक है, आपके पास लाइफ में एक चैलेंज है कि आपके पास टाइम कम है, एंड ऑब्वियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, वो बात मैं समझती हूँ. बट द थिंग इज कि आपको इस बात पे हमेशा खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए दैट एटलीस्ट यू आर एम्प्लॉयड, यू आर वर्किंग, यू हैव सम पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, राइट? सो फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग सो यू हैव दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, सो यस, आपके साथ ये चैलेंज है कि आपके पास टाइम कम होता है. अब हम अगर बात करें वो एस्पिरेंट्स को जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, तो आप उनके साथ अगर बात करें ना, कि उनके पास पूरा दिन तो होता है, दे हैव फुल डे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स, बट यू नो व्हाट, दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, they have this thought in their mind कि यार they are not employed, they are unemployed right now, they have gap years, and a lot of things are there. So the thing is कि दोनों साइड के जो एस्पिरेंट होते हैं ना, दोनों के पास कुछ ना कुछ चैलेंज होता ही है, राइट? सो यस, आपकी लाइफ में भी चैलेंज है, वर्किंग प्रोफेशनल के भी, एंड फुल टाइम एस्पिरेंट्स के भी लाइफ में चैलेंजेस है, राइट? सो जो भी चैलेंज है, कोई बात नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू है, सो ट्राई टू फोकस और ट्राई टू प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर लाइफ, ट्राई टू डू द टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. ऐसे ही फुल टाइम एस्पिरेंट्स वालों के लिए बोलूंगी, इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो. अगर इंप्लीमेंट ढंग से करते रहोगे तो देयर आर हाई चांसेस यू विल क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज मेनी ऑफ द फ्रेशर्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विद गैप ईयर्स, with unemployment tax, still they are doing wonderful in this exam. Okay, so everyone can do it, but yes, you need that willingness to put efforts on a daily basis, right? So I have tried कि आप 3 घंटा रोज दे तो आपका फेज 2 का आराम से हो जाए. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर एवरीवन. So obviously there are key points, obviously there are a few key points as well. Now key points include that on weekends you have to give enough time to prepare for quant reasoning and revision. Now why I'm saying this quant reasoning, अब आपको मैम phase 2 का plan था, why are you talking about quant reasoning? Because see everyone, yes, phase 2 is very important because it will determine your final selection, right? But phase 1 is also important. Now why phase 1 is important? Because अगर phase 1 clear ही नहीं करोगे तो phase 2 में कैसे आप कर पाओगे, right? phase 2 तो आप लिख ही नहीं पाओगे, right? So that's why I want you guys, yes, phase 2 is important, but phase 1 भी उतना ही important है, because without phase 1 you will not be able to write phase 2 exam, right everyone? So what I want you guys to focus on, like on weekends I want you guys to prepare really well for quant reasoning English, and you need to do revision as well. Why I'm saying this, because weekends पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है, so give enough time to prepare for quant and reasoning as well, because ऐसा ना हो कि हम phase 2 के लिए well prepared रहे और phase 1 में ही हमारा कुछ ना हो पाया, है ना? So we need to be well prepared for both the sections. Okay, so phase 1 में quant reasoning को बिल्कुल ignore नहीं करना है, ठीक है? Then what we need to do, in every 10 days we will be typing 3 to 4 descriptive answers. Now why this thing is important for you all everyone, why it is important to type 3 to 4 descriptive answers? Because at the end your phase 2 exam consists of 200 marks of descriptive paper only, right? So 200 marks are actually dependent on your descriptive writing skills. So वो skill कैसे develop होता है, वो gradually ही होता है. So gradually आपका skill तब develop हो पाएगा when at least you are typing 3 to 4 descriptive answers in every 10 days. And आप बोलोगे मैम इतने से लिखने से हो जाएगा? Trust me, हो जाएगा. But yes, because देखो, मैं सिर्फ आपके 1 महीने की बात नहीं कर रही हूँ. I am talking about कि आपको हर दिन में 4 आंसर लिखना है, यानी कि आपको हर महीने में कम से कम 12 आंसर लिखना है, और आप 3 महीने में कम से कम you will be writing around 30 to 40 आंसर. And 30 to 40 आंसर्स में आपका स्किल जरूर डेवलप हो जाएगा. आपका वो जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, लॉजिकल माइंडसेट होता है, एवरीथिंग विल
will start working in this domain only कि ठीक है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में कैसे क्रिएटिव आप हो सकते हैं. बट यस वहां तक जाने की क्रिएटिविटी आने तक कुछ अलग लिखने से पहले आपको एक प्रोसेस होता है सिंपल सा जिसमें आपको स्टार्ट करना होता है. ओके सो स्टार्ट टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एवरीवन. देन द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि मैनेजमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एवरीवन बिकॉज 65% of your FM paper, because 65% of your FM paper is all about management. 65% of your FM paper is all about management. So 100 marks का पेपर में से अगर 65 marks में से सिर्फ management में से आ रहा है, then इसका मतलब है कि management is very important, right? And see, management is the easiest, the most scoring and the most ignored topic. But I don't want you guys to ignore this topic because जब भी मैं किसी टॉपर से बात करती हूँ ना तो मुझे उनसे बात करके ये समझ आता है कि उन्होंने मैनेजमेंट में पूरा ध्यान दिया था. So प्लीज एवरीवन, अगर आप फेज 2 में कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं स्टिल आपको मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए. अगर और सब्जेक्ट नहीं भी हो पाते हैं इट्स ओके, try to focus on management because this subject will actually help you to score really good marks in your FM paper. And trust me, FM paper ही scoring होता है, ESI is not that scoring. So अगर आप FM में around 70 if you are getting, then there are high chances that you will get selected. Okay, now the fourth is for phase 2 objective current affairs 5 months of RBI circular, sorry here 5 to 6 months. ठीक है, 6 लिखना मैं भूल गई. 5 to 6 months of RBI and SEBI circulars and 5 to 6 months of PIB, very important. ठीक है, so हमें 5 to 6 months of RBI and SEBI circulars करने हैं, then 5 to 6 months of PIB भी करना है, एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स रिपोर्ट्स भी हैं. वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी. ओके एवरीवन, सो यस, बट ये करंट अफेयर्स वाला हमेशा डाउट रहता है बच्चों को कितने मंथ्स का करना चाहिए. सो इतने मंथ्स का आपको करना है. 5 to 6 months of RBI and SEBI circulars, 5 to 6 months of PIB. RBI and SEBI circulars बिकॉज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स तो आपके मैनेजमेंट से आता है, तो 25 मार्क्स का आपका फाइनेंस आता है. एंड इस 25 में से मोर देन 18 प्लस, मतलब 18 प्लस से ज्यादा का जो पेपर होता है इट कम्स फ्रॉम योर RBI and SEBI circulars. Then a few questions are there from finance static as well, but yes, around 18, like you can say कि कम से कम 18 मार्क्स का पेपर आपका RBI and SEBI circulars से आता है. So that's why this section is important. Okay, now why PIB is important everyone? Why PIB is important? Because see, ESI objective आपका 50 मार्क्स का होता है, and उस 50 मार्क्स में से you can easily around like 30 marks of paper comes from government schemes. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से आता है अराउंड 30 मार्क्स, बाकी रिपोर्ट से आता है, कुछ और इनिशिएटिव से आता है. तो ये 30 मार्क्स का गवर्नमेंट स्कीम्स कहाँ से पता लगता है? ये आपको सारी चीजें पता लगेंगी विद द हेल्प ऑफ PIB. सो विद द हेल्प ऑफ PIB यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर ऑन न्यूज. सो स्कीम्स इन न्यूज PIB से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू 5 to 6 months of PIB. Okay, so these are the important things that you need to keep in your mind. Now let's move ahead everyone. So day 1 to day 10. So obviously 10 दिन में आपको क्या करना है, वो यहाँ पे 10 days का टारगेट बनाया है. हर 10 दिन में आपको क्या करना है, I have created this plan in this way. Now, so for finance, what do you need to do? Now for finance everyone, you need to do financial institutions and functions of Reserve Bank of India. You need to do financial institutions and functions of Reserve Bank of India. Now see, functions of Reserve Bank of India को करने में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा. Then financial institutions को भी मैक्सिमम आपको 5 hours लगने चाहिए मेरे हिसाब से. But yes, काफी बच्चों को थोड़ा ज्यादा भी लगेगा, किसी को कम भी लगेगा. It is absolutely fine. Okay everyone, now so for finance what you need to do, you need to cover these 2 topics. Now see, even if you are studying daily 1 hour finance, then आप लोग आराम से 10 घंटे में ये 2 टॉपिक्स कर सकते हैं, right? Then we have management. So management में है we have evolution of management thought, then management functions, then managerial roles and nudge theory. अब आप सोच रहे हो मैम इतने सारे टॉपिक्स हम 10 दिन में कैसे करेंगे, right? So ज़्यादा परेशान नहीं होना है. Evolution of management thought में you have 3 to 4 theories only. Like you have to read administrative theory of Henry Fayol, in which only 14 principles are given. तो 14 principles पढ़ना है. Then FW Taylor का scientific management पढ़ना है. उसमें तो 4 से 5 principle है, 4 से 5 टेक्निक है, बस वो पढ़ना है. Then we have Max Weber bureaucratic management theory. वो Max Weber की छोटी सी theory आपको वो पढ़ना है. बस systems approach पढ़ना है. So छोटी छोटी चीजें पढ़नी है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एवरीवन. ठीक है, सो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, not that big topic, but yes, it will take around 3 hours to complete this topic. Then we have management functions will again take maybe 2 hours.
because management functions you have to read planning, different types of plan, then in organizing, then you have to read organizing, then in organizing you have to read different topics like organizational, different organizational structure, right? देन इसमें फिर आप पढ़ेंगे स्टाफिंग में फोकस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का डिफरेंस बहुत बेसिक सा छोटा सा वो करना होता है. देन स्टाफिंग का आपको बेसिक पता होना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दैट्स इट. देन उसके बाद तो कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, वो आप लोग कर लेंगे. देन वी हैव मैनेजरियल रोल्स. इट इज लाइक 1 से 1.5 घंटे का काम है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 10 रोल पढ़ने हैं. देन नर्स थ्योरी आपका 30 मिनट्स का काम होगा, बिकॉज नर्स थ्योरी में ज्यादा कुछ है ही नहीं, 2 से 3 पेज का टॉपिक होता है, दैट्स इट. सो again, if you are reading management only for 1 hour a day, then you will be able to manage it. अब आप पूछोगे मैम आपने ESI तो लिखा ही नहीं है. ESI मैं आपको आगे जाके मेंशन करूंगी एकदम लास्ट में, बिकॉज ESI इज नॉट द सब्जेक्ट जिससे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, राइट? ESI स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? एंड मुझे लगता है इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन मोर और लेस आपको वो अंडरस्टैंडिंग होती है, बट स्टिल आई विल बी मेंशनिंग द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू नीड टू डू, बट यस लेटर ऑन. ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू एवरीवन, देन आपको फेब के आरबीआई सर्कुलर्स करने हैं, सेबी सर्कुलर्स करने हैं, एंड मार्च का पीआईबी करना है. सो 10 दिन में मार्च का पीआईबी आप आराम से कर सकते हैं. 10 दिन में फरवरी का सर्कुलर्स तो ऐसा है कि आप पढ़ के उसको 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट? सो वेरी डूएबल प्लान, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए. इवन इफ यू आर रीडिंग 3 hours a day, still you can manage it, right? Then we have practice 3 to 4 descriptive answers. अब descriptive answers के सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आपका क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, suppose you have read the topic functions of Reserve Bank of India, try to create the simplest of the simplest question. Simple question क्या ही हो सकता है, that write down the functions of Reserve Bank of India. This is the simple question, right everyone? So simple question आपने लिखा एंड वहां पे आपने बढ़िया से जितना आपने पढ़ा है just type और just try to create the better or just try to write the answer in a more structured way, ठीक है? जैसे डेफिनेशन ऐड किया, देन डिफरेंट फंक्शंस ऐड करे, देन दो और भी चीजें, कुछ एग्जांपल याद आ रहा है, करंट अफेयर्स कुछ है तो लिंक करके देखो. करंट अफेयर्स नहीं भी आ रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. जितना पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करो, ओके? एंड जब फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, वैसे तो आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी मैंने कहीं मेंशन किया होगा, बट यस मॉनेटरी पॉलिसी फिर भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ओके, सो प्रैक्टिस 3 to 4 डिस्क्रिप्टिव. मैंने आपको बताया है कि जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस पर सिंपल सा क्वेश्चन बनाओ एंड जस्ट टाइप द आंसर. अब जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, तो हेनरी फॉल की 14 प्रिंसिपल्स पे डिस्क्रिप्टिव आ चुका है. सो नाउ ट्राई टू राइट द डिस्क्रिप्टिव ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एफडब्ल्यू टेलर. सिंपल सा क्वेश्चन बनाओ और जितनी चीजें आती हैं अभी वैसे लिखने की कोशिश करा करो. स्टार्टिंग में ये भी करोगे, इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स. ओके एवरीवन, ठीक है? देखो मैं आपको बात बताती हूँ, मैजिक ना छोटी छोटी चीजों में ही होता है. इफ यू रियली वांट मैजिक, कि आपकी लाइफ में मैजिक होए, है ना, कुछ चीजें अच्छी होए, आपके फेवर में हो, तो वो तभी होती है जब हम छोटे छोटे सिंपल सिंपल स्टेप्स कंसिस्टेंटली करते जाते हैं. सो मैजिक विल हैपन, मैजिक इज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन द दीज स्मॉल स्टेप्स ओनली. आप ये मत सोचिए कुछ दिन एकदम बहुत बड़ा करोगे तभी कुछ बहुत चमत्कार होता है, ऐसा नहीं है. Magic is hidden in your day to day small things that you can do. Okay, so these are the small tasks that you need to do on a daily basis. Consistently करोगे तो बहुत help मिलेगा. Okay, now let's move ahead. So day 11 to day 20 हमारे सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बिकॉज हमने पिछली क्लास में पिछली बारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ा, फिर हमने फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट एंड मनी मार्केट. नाउ सी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, again very important topic. Now see, whatever topics I have mentioned in the entire plan, अब इनका सारा जो ये स्ट्रक्चरिंग किया है कि पहले ये पढ़ेंगे बाद में ये पढ़ेंगे, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक. जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. Then the next most important topic of finance syllabus is primary, secondary and money market. So that's why. So basically everything is based on the priority कि कौन सा ज्यादा important है. तो I want my students to do those topics first जो ज्यादा important है. Okay, that's why I haven't started ESI in the starting only. ठीक है, तो फिनेंस के लिए प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट कर लेंगे. यू कैन इजिली डू 10 घंटे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ आप डेली 1-1 घंटा फिनेंस पढ़ेंगे. 10 घंटे बहुत है प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट पढ़ने के लिए. देन वी हैव मैनेजमेंट में मोटिवेशन. देखो परसेप्शन से 3 से 4 पेजेस का टॉपिक होता है. परसेप्शन में यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, यू नीड टू लर्न द डिफरेंट परसेप्चुअल एरर. ये तो आई थिंक आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हैं. देन वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस में रीड द डेफिनेशन, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देन जस्ट रीड द डायमेंशंस, दैट्स इट. बस इतना सा है इमोशनल इंटेलिजेंस में. अगेन दिस टॉपिक will just take 2 hours. Yes, this is bit long, but yes 6 घंटे में आप मोटिवेशन आराम से कर सकते हैं, because motivation में we have n number of theories, but again 6 hours are more than enough to cover motivation.
ठीक है। सो आई थिंक आप यहाँ से कर लीजिएगा, मोटिवेशन की जितने थ्योरी सिलेबस में मेंशन है जस्ट उतना कर लीजिए, बहुत है। ओके, देन वी हैव ओके एंड यस, मोटिवेशन में जब आप पढ़ेंगे ना तो थ्योरी एक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड भी होती है विलियम आउची की। ये 3 थ्योरीज आप एक्स्ट्रा जरूर करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस बट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीस पर्टिकुलर थ्योरीज, ठीक है। सो ये मोटिवेशन में हो या ना हो बट स्टिल यू हैव टू रीड थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड, ठीक है। नाउ अब देखो, हमने पिछले सेशन में क्या किया, फेब्रुअरी के सर्कुलर्स पढ़े थे, राइट, एंड हमने मार्च का पीआईबी किया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइम तक आपके मार्च के सर्कुलर्स तो है अभी तक अपलोडेड हो चुके हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू नीड टू do your March circulars. What you need to do? You need to do March circulars. And क्योंकि पिछले महीने हमने मार्च का पूरा पीआईबी पढ़ा था, फेब्रुअरी सर्कुलर्स पढ़े थे, so in these, sorry, पिछले महीने नहीं, पिछले 10 दिनों में, now in these 10 days you need to revise March PIB and February circulars. Because the thing is, देखो, पढ़ के अगर आप सब छोड़ते चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। पढ़ के यू हैव टू रिवाइज द सेम कंटेंट एंड नंबर ऑफ टाइम्स एवरीवन। ओके, सो कोशिश करिएगा कि पूरे प्लान में रिवीजन भी हम हर जगह ऐड करें, ठीक है। देन रिवाइज करेंगे, उसके बाद बजट, छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, बजट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम एवरीवन, ठीक है। बजट से 1-2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, फेज 1 फेज 2 कहीं पे भी, एंड बजट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे डिस्क्रिप्टिव भी आता है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर बजट। ओके, देन अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू टाइप 3 to 4 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। जैसे आप मोटिवेशन पढ़ोगे तो मोटिवेशन का एक आध टॉपिक उठा के उसका आंसर प्रैक्टिस कर लिया। देन मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप उस पर एक डिस्क्रिप्टिव बना के कर सकते हैं, राइट। जैसे एक बार डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बार 81 बॉन्ड से पूछ लिया था, सो यू नेवर नो कि मनी मार्केट जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। ओके, देन हम लोग बजट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, फिर हम आते हैं डे 21 टू डे 30। तो अब हम यहाँ तक आते हैं बहुत कंसिस्टेंट हो चुके हैं, एंड आई थिंक सो कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लग गया होगा कि यार हो जाएगा, है ना, मैनेजेबल है, इतना तो हम कर सकते हैं, राइट। So now for finance, what do you need to do? Because we have covered money market, now it is the right time to put bond market topic. Now this topic is very very important topic everyone. Now why it is important, bond market क्यों important है? Because you know this year in RBI grade B interview a lot of questions were asked on the relationship between bond का जो price yield, ये सब जो रिलेशन होता है इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे। देन 81 बॉन्ड पे आपका डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया था 2024 में। सो यू नेवर नो कि इस टॉपिक से कब क्या उठ के आ जाए, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन उसके बाद फॉरेक्स मार्केट एंड डेरिवेटिव से एक बार डिस्क्रिप्टिव आया है, यू नेवर नो अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए इससे, है ना। सो वी नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेक्स मार्केट इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप वो एक्सटर्नल बोरोइंग का कुछ फ्रेमवर्क होता है वो जरूर पढ़ लेना, बाकी बॉन्ड में एंड डेरिवेटिव में तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन दीज टॉपिक्स आर नॉट वेरी वेरी बिग, ठीक है। तो इन लाइक अगर आप डेली 1-1 घंटा पढ़ते हैं 10 घंटे में मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट में अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी थी। कम्युनिकेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देन कम्युनिकेशन, अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैनेजेबल है। देन पर्सनैलिटी इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। पर्सनैलिटी में जस्ट पढ़ना होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, देन बिग 5 थ्योरी ऑफ big 5 model of personality, then there are 1 or 2 theories of personality, that's it. Then Johari window very small topic, 1 से 2 पेजेस का टॉपिक ये होता है, राइट। सो अगेन अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको 10 घंटे नहीं लगेंगे, यहाँ पे शायद आप 7 घंटे में आपको सब कुछ हो सकता है, सपोज 8 घंटे में होगा। तो जब आपके पास टाइम बचे 2 घंटे का तो ट्राई टू डू द रिवीजन। जो पिछले टॉपिक्स किए थे उसका कुछ रह गया तो वो कंप्लीट कर लो, नहीं तो रिवाइज करो। ऐसे ही जहां जहां पे टाइम बचे तो वहां से पिछले चीजें कवर अप करने की कोशिश किया करो। ओके, अब हमने पिछले 10 दिनों में क्या पढ़ा था, वी ऑलरेडी हैव कवर्ड मार्च सर्कुलर्स एंड बजट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे मार्च सर्कुलर्स एंड बजट को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल बी रिवाइजिंग मार्च सर्कुलर्स एंड बजट, एंड उसके साथ साथ अप्रैल पीआईबी, बिकॉज इस टाइम तक अप्रैल एंड होने वाला होगा, सो यू कैन इजिली कवर योर अप्रैल मंथ ऑफ पीआईबी। ओके, देन अगेन प्रैक्टिस 3 to 4 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, एंड ये आप तब वीकेंड पे कर सकते हैं विद क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। डू नॉट forget those subjects. Okay everyone, चलो, now day 31 is here, 31 to 40. So finance के लिए I have mentioned here cover backlog, क्योंकि finance थोड़ा सा लेंदी होता है, कभी कभी सारे बच्चे सेम पेज से नहीं पढ़ पाते हैं, बट यस अगर यहाँ पे कोई भी आपका बैकलॉग रह गया था सो वो बैकलॉग कवर कर लो, अगर नहीं है तो रिवाइज कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे वैसे रिवाइज करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि यू ऑलरेडी हैव कवर्ड अ लॉट, सो यू कैन फोकस एंटायरली ऑन इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। 10 दिन बहुत होते हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए भी। देन फाइनेंस के लिए बैकलॉग करेंगे, मैनेजमेंट के लिए क्योंकि हमने सब छोटे छोटे टॉपिक्स लिए थे। देन यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगी। अगेन
ये सारे टॉपिक सिर्फ 5 से 6 घंटे के ही हैं, यानी कि जब 4 घंटा बचेगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज मैनेजमेंट। ओके, अब पिछले 10 दिनों में हमने, क्योंकि अप्रैल का पीआईबी पढ़ा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिवाइज अप्रैल पीआईबी, एंड इस टाइम तक आपका अप्रैल का सर्कुलर का वीडियो भी आ जाएगा। सो डू कवर आरपीआई सर्कुलर्स, do cover April month of circulars, everyone. Okay, then we have economic survey. See, economic survey we have a lot of chapters, but focus on chapter 1, chapter 2, then the chapter which is related to climate change. Now climate change, and yes, chapter 1 2, then social infrastructure chapter, then social infrastructure. So these are the most important chapters. So first cover these chapters, then you can see, और हाँ, एक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी एक चैप्टर ऐड हुआ है, तो वो भी कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर लग रहा है कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ने का मन है, तो यू कैन रेफर इट, अदरवाइज कुछ चीजें छोड़ने के लिए ही बनी होती है, ठीक है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, क्लाइमेट चेंज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पहले ये कर लीजिएगा, टाइम मिलता है तो कुछ और भी आप कर सकते हैं। देन अभी तक हमने स्कीम्स के बारे में नहीं बात करी थी, अब नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर स्कीम। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम बच रहा होगा। सो टाइम बचने का फायदा हम कैसे उठाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स जो है हम सारी वो करेंगे, एंड इसमें कुछ भी पहले दूसरा नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है। सो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, देन अगेन प्रैक्टिस 3 to 4 descriptive answers. Okay, now then we have day 41 to 50, day 41 to 50. now देखो, अब मैं आपको यहाँ पे आके एक बात बताना चाहूंगी। अभी देखो, मुझे भी नहीं पता है नोटिफिकेशन कब आएगी, आपका एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा, राइट? नोबडी नोज द एक्चुअल थिंग्स, राइट? वी ऑल आर सेइंग थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम और द अदर इंफॉर्मेशन, राइट? बट अब मैं यहाँ पे ये सोच के चल रही हूँ कि बाई चांस अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका एग्जाम इसके सपोज 40 दिन बाद होता है, सो अब आप इस फेज 2 के प्लान में ऐसा क्या मॉडिफाई कर सकते हो? बिकॉज सी, हमने यहाँ तक अभी तक जितना करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज फेज 2 टॉपिक्स। बाकी हमने पीआईबी पढ़ा, सर्कुलर्स पढ़ा, स्कीम्स पढ़ा, वो सब हमें हेल्प होगा ही। अब बजट पढ़ा, वो सब हमें फेज 1 में भी हेल्प करेगा इक्वली, राइट? सो अगर मैं आपकी जगह होती हूँ और सडनली इस टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल नाउ नॉट बी फोकसिंग ऑन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, आई विल नॉट बी फोकसिंग ऑन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, ठीक है। सो जब तक मेरा एग्जाम नहीं होगा, तब तक आई विल बी जस्ट डूइंग द पीआईबी एंड द सर्कुलर्स, the most important thing, and I will be focusing on quantum reasoning, ठीक है? क्योंकि बाकी जो चीजें हैं you can cover it later on also, ठीक है? अगर एग्जाम इस तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया स्टिल यू कैन फॉलो द सेम प्लान, राइट? आई हैव जस्ट गिवन यू द थॉट प्रोसेस कि अगर नहीं एग्जाम आ गया तब हम क्या करेंगे, देन वी विल लीव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लान, वी विल बी लाइक ठीक है, ये जो चीजें रह गई आई विल कवर इट आफ्टर माय फेज 1 एग्जाम, ठीक है? फेज 1 में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, बट यस, अगर नहीं आता नोटिफिकेशन देन फॉलो दिस प्लान एंटायरली एज इट इज। ओके, चलो। सो अब हम यहाँ पे डे 41 से 50 में क्या करेंगे, फाइनेंस में आ चुके हैं, एनबीएफसी पढ़ेंगे। एनबीएफसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू डू द, जो एनबीएफसी का सर्कुलर होता है ना, जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन रिस्क मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बेसल फ्रेमवर्क, ठीक है? देन स्पार्क फ्रेमवर्क, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल आपको पता होना चाहिए, बेसल 1 क्यों आया, 2 क्यों आया, 3 क्यों आया, व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स इन बेसल 1 एंड 2 जो हमने बेसल 3 में इनकॉर्पोरेट किया। देन स्पार्क फ्रेमवर्क के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट मोर लेस आपको ये सारी चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए। ओके, देन मैनेजमेंट में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, जस्ट आई हैव जस्ट मेंशन लीडरशिप, बिकॉज अगर अब लीडरशिप ऐसा टॉपिक है 5 से 6 घंटे में आराम से हो सकता है, अगर आपके पास 3 से 4 घंटे बचते हैं तो देन again the same thing, you just have to revise the previous thing that you have done. Okay, now अब यहाँ पे आएंगे तो मे मंथ होगा आपका, तो 15 डेज ऑफ मे पीआईबी करेंगे, उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम्स करेंगे। पहले हमने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम करी, अब हम किसकी स्कीम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम्स करेंगे, एंड उसके साथ वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस 3 to 4 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। ओके, चलो विल मूव अहेड। डे 51 टू डे 60, डे 51 टू 60 में क्या करेंगे, फाइनेंस में यू हैव टू रीड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन फिर आपको नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है रिसेंट वाला, आपको वो पढ़ लेना है एक बार, ठीक है? उसमें जो पिलर्स बताए हैं, जो गाइडलाइंस रिकमेंडेशन दी, आपको वो पता होने चाहिए। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है अपना, उसके बारे में स्टैटिक, बेसिक, कॉम्पोनेंट सब पता होना चाहिए। ओके, एंड द वेटेज किसको ज्यादा है किसको कम है ये पता होना चाहिए। देन इन अकाउंटिंग के देखो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, डुएबल आते हैं, सो अकाउंटिंग के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। whatever formulas are mentioned, whatever ratios are mentioned in your syllabus,
जस्ट कवर दोज रेशियोज, ठीक है। एंड उस रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसके बाद यू कैन इजिली डू, जो भी एक से वो 2 क्वेश्चन गलती से पूछ लेते हैं वो आप आराम से कर सकते हो। ओके, उससे ज्यादा काउंटिंग की टेंशन नहीं है। अगेन दीज टॉपिक्स आर नॉट वेरी ह्यूज, तो आपको 10 घंटे नहीं लगेंगे, टाइम बचेंगे तो बैकलॉग करिए, रिविजन करिए, नहीं तो जो फेज 1 में आप एक्स्ट्रा टाइम पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सब चीजों से जो जो आपका टाइम बचता जाए वो टाइम यूटिलाइज करिए अपना क्वांट में, वो टाइम आप यूटिलाइज करेंगे रीजनिंग में। एंड यस, देखो इस प्लान की मदद से यू विल बी कवरिंग सर्कुलर्स, यू विल बी कवरिंग पीआईबी, बट अगेन न्यूज़पेपर सीए इज लेफ्ट, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ से टाइम मिलेगा तो आपको न्यूज़पेपर सीए भी कर लेना है, दैट विल हेल्प यू इन योर फेज 1 प्रिपरेशन, राइट। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था फेज 1 हो जाएगा तभी हम फेज 2 लिख पाएंगे, राइट। सो बोथ द फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है। सो यहाँ पे हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट में जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे होगे ना, तो जो फाइनेंस वाला पार्ट होता है ना, फाइनेंस वाले पार्ट में क्या होता है, सर्कुलर है एक आरबीआई का विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो डू कवर दैट सर्कुलर एवरीवन, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सर्कुलर है जो आप फाइनेंस में पढ़ते हैं वो भी कवर कर लेंगे, और जो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना होगा वो भी आप करेंगे। ओके, देन वी हैव 15 डेज, क्योंकि हमने पिछले 10 दिन में 15 दिन का पीआईबी करा था, तो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज यू हैव टू डू 15 डेज ऑफ रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ मे पीआईबी। ओके, एंड अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सोशल जस्टिस की सारी स्कीम्स करी थी, तो यहाँ पे अब हम आगे क्या करेंगे, वी विल बी रिवाइजिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सोशल जस्टिस स्कीम्स। ओके, then again you have to type 3 to 4 descriptive answers. Now जहां जितना यहाँ से टाइम बचता जाएगा, यूटिलाइज दैट टाइम फॉर फेज 1, बाकी वीकेंड्स पे तो हमें फेज 1 को थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देनी ही है, ठीक है। देन डे 61 टू 70 पे आते हैं, फाइनेंस में आपको इन्फ्लेशन एंड बजट पढ़ना है। सी इन्फ्लेशन में लॉट ऑफ इंडेक्सेस आर मेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इन्फ्लेशन इज हैपनिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, और अभी जो करंट डेवलपमेंट है लाइक वॉर लाइक सिचुएशन, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इन्फ्लेशन और हाउ इट इज क्रिएटिंग मोर इन्फ्लेशन, और व्हाट इज गुड इन्फ्लेशन, व्हाट इज बैड इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करेंगे। बजट में, बजट तो हमने पढ़ा ही होगा करंट वाला, बट बजट के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, स्टैटिक पार्ट होता है, पहला बजट कब आया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी अच्छे से। ओके, देन वी हैव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का देखो एथिक्स का टॉपिक भी बच गया है सिर्फ, तो एथिक्स पढ़ लेना, एथिक्स देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगेन 6 to 7 आवर्स में यू कैन इजिली कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यू नो मैनेजमेंट में देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एथिक्स में यू नो जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज मेंशन है, जैसे रिलेटिविज्म की थ्योरी मेंशन है, देन थियोलॉजिकल थ्योरी, थियोलॉजिकल प्रिंसिपल इज मेंशन, देन डियोंटोलॉजिकल इज मेंशन, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल, you need to be have good you need to have good understanding of all the terms that are mentioned in your ethics, that are mentioned in your management syllabus, ठीक है, जहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, और एथिक्स से एक डिस्क्रिप्टिव भी आता है, सो यू नीड टू बी वेल अवेयर, बट यस जितने कीवर्ड्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो कर लोगे तो आपका एथिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगेन जो टाइम बचे फेज 1 में दे सकते हो, नहीं तो ये टॉपिक्स को कवर करने में दे सकते हो। अब तक आपका मे का सर्कुलर का वीडियो भी आ जाएगा, तो मे के सर्कुलर्स आप लोग अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपने क्योंकि पिछले 20 दिनों में मे का पीआईबी पढ़ा था, तो नाउ यू हैव टू रिवाइज द मे पीआईबी। सो अगले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्या रिवाइज करेंगे, मे का पीआईबी अच्छे से रिवाइज करेंगे, एंड यहाँ पे हम मे के सर्कुलर्स पढ़ेंगे। अभी हमने स्कीम्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पढ़ा, सो यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की सारी स्कीम्स करेंगे। अगेन दिस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Okay, then you have to practice 3 to 4 descriptive answers. एंड देखो अगर इस बीच में आपका फेज 1 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ये स्कीम्स वाला सेक्शन को छोड़ सकते हो, देन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की टाइपिंग छोड़ सकते हो, ये 2 चीजें आप छोड़ सकते हो, बाकी ये चीजें आपको ऐसे कंटिन्यू करनी होंगी। यस ऑब्वियसली आफ्टर फेज 1 देन यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, बट आई थिंक उस टाइम हम दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो वीकेंड्स में भी आपके पास टाइम होगा, यू कैन पुट दैट एफर्ट फॉर फेज 2 प्रिपरेशन ओनली, राइट। सो वी विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, राइट एवरीवन। देन डे 71 to 80 इज देयर। सो अब आ जाते हैं ईएसआई पे, बिकॉज हमने यहाँ पे फाइनेंस और मैनेजमेंट सारा मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट था वो सब कवर कर लिया होगा। सो फॉर ईएसआई द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे पहले एमडीजीज आए थे तो उसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज हुआ है, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। देन इसके साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सारा स्टैटिक पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुआ, दोहा डायलॉग हुआ तो कौन से ईयर में हुआ, किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे WTO में हम काफी सारे एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा एक सा एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया इज इन्वॉल्व, सो यू नीड टू कवर ऑल दोस थिंग्स, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ठीक है अभी IMF का कौन सा करंट डायरेक्टर जनरल है, हु इज द डायरेक्टर, हु इज नॉट, सो दीज थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन इसके साथ एलपीजी रिफॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसी क्या सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ विच वी हैव इंट्रोड्यूस एलपीजी रिफॉर्म्स।
ओके देन इसने कैसे इंडिया को बेनिफिट किया, व्हाट आर द चैलेंजेस, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स. ओके देन फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इन डिटेल एंड एमपीसी. सो जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स एंड जो एमपीसी कमेटी के बारे में डिटेल्स है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे. एंड यस रीसेंट एमपीसी अपडेट्स भी पढ़ना है इसके साथ साथ. सो रीसेंट एमपीसी अपडेट्स अच्छे से पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भी इंडिया ने अभी तक लिए हैं एंड उसके साथ लेबर पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईएसआई. सो ईएसआई के लिए ये टॉपिक्स करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है, बाकी इन्फ्लेशन बजट तो हमने पहले कर लिया होगा. देन अब क्या हो गया, अब देखो मैं नहीं बता सकती मैनेजमेंट का ये टॉपिक रिवाइज करो, फाइनेंस का ये करो. ना इट्स अप टू यू, रिवाइज दीज थिंग्स एज पर योर पेस. ठीक है, जैसे टाइम मिलता है जितना मैनेज कर पा रहे हो उसके हिसाब से मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस को रिवाइज करते रहो. ठीक है, then 15 days of June PIB, then उसके बाद do reports of World Economic Forum, IMF and World Bank in detail. Why I am saying this thing? Because we have seen in our previous year papers that World Economic Forum, IMF and World Bank की जो स्कीम जो रिपोर्ट्स होती हैं उससे डायरेक्टली आपके डिस्क्रिप्टिव में एंड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं. So that's why it is very important everyone, that's why it is very important that you are covering the reports of World Economic Forum, IMF and World Bank in detail. Okay, देन इसके बाद यहाँ पे आते आते आपका फेज में तो सब हो चुका ही होगा ज्यादातर चांस है. सो यू नीड टू प्रैक्टिस 2 प्रेसे राइटिंग, 2 एसे एंड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस फॉर योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. बिकॉज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को हम कैसे भूल सकते हैं, राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस 2 प्रेसे राइटिंग, 2 एसे एंड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस फॉर योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, नाउ 81 to 90. सो अब यहाँ पे अगेन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. अब देखा जाए तो आपको प्लान में 20 दिन मिला टू रिवाइज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड ट्रस्ट मी 20 days आर मोर देन इनफ टू रिवाइज योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ओके, सो 20 दिन में आप अच्छे से कर पाएंगे. उसके बाद 15 days ऑफ जून पीआईबी कर लेना एंड जून सर्कुलर्स अब आ चुके होंगे तो अब आपको यहाँ पे जून सर्कुलर्स करना होगा. एंड अगर हमने पिछले मई का सर्कुलर रिवाइज नहीं करा है कहीं पे भी, सो यू हैव टू रिवाइज द मई सर्कुलर्स एज वेल. ठीक है, अब जून का सर्कुलर आ गया होगा तो जून का सर्कुलर हम अच्छे से करेंगे. उसके बाद 15 days ऑफ जून पीआईबी करेंगे. देन उसके बाद आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ज्यादा चांस है जून के एंड तक आ जाती है. सो डू इट. एंड यस आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है, आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से 2 बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव मोर. और आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, like how banks are performing, deposit growth क्या है, NPA क्या है, just to understand all those things. Okay, then we have, अभी तक हमने स्कीम्स में वी हैव कवर्ड द स्कीम्स ऑफ, हमने क्या किया है एवरीवन, स्कीम्स में हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन किया. बट व्हाट अबाउट अदर स्कीम्स? सो वी हैव टू डू स्कीम्स इन न्यूज ऑफ पास्ट 6 months. एंड आपको एक खुशी की बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स यू ऑलरेडी हैव कवर्ड इन पीआईबी. ठीक है, अब जो भी बचा कुछ होगा वो जाके 6 महीने के कर लेंगे हम, राइट? Then we have to give 2 full-length descriptive tests of ESI, Finance, Management and English because अब तक आप बहुत पढ़ चुके हैं. You have already covered a lot of things. So this is the right time to give 2 descriptive tests of each paper for ESI, for FM and for English. ठीक है, देखो ये एफर्ट मांगता है बट इतना एफर्ट देना सीखो यार बिकॉज आपको एग्जाम क्रैक करना है, राइट एवरीवन? सो आफ्टर 90 days, बिकॉज मुझे लगता है इसके बाद भी आफ्टर 90 days भी यू गाइज विल बी हैविंग अराउंड 10 to 15 days, 15 डेज होंगे आपके मेंस होने तक. तो आपके पास बहुत टाइम होगा बैकलॉग कवर करने का, रिवीजन करने का, जो भी चीजें रहती होंगी उसको अच्छे से करने के लिए. सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू नाउ, बिकॉज हमने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सारी रिपोर्ट कर ली होंगी डिटेल में. बट यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, हमने जो रिपोर्ट वो नहीं करी जो न्यूज में थी, राइट? So what you need to do now, you need to cover the reports of past 6 months that were focused on sustainable development goal, environmental issues, women empowerment, women issues and migration and urbanization, because these topics are directly related. And with this obviously poverty, please include poverty as well. ठीक है, so you need to cover the reports, you need to cover the reports of past 6 months. जो हमने पहले IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया वो तो करना ही है. उसके बाद से you have to cover the reports of that basically जिनका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनवायरमेंट, वुमेन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी. ठीक है, सो डू कवर द पास्ट 6 months ऑफ रिपोर्ट्स. एंड यस, इसके साथ जो रिपोर्ट्स हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की पढ़ी थी उसको रिवाइज करेंगे. ओके एवरीवन, देन वी हैव रिवाइज. अब बेसिकली सारा प्लान है रिवीजन करना है आपको. स्कीम रिवाइज करो, सर्कुलर रिवाइज करो, मैनेजमेंट प्रायोरिटी पे रख के रिवाइज करो, देन रिवाइज करो फाइनेंस एंड ईएसआई को भी. ओके, इसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव एंड एसे प्रैक्टिस करोगे तो ट्राई टू प्रैक्टिस एसे ऑन थीम्स लाइक climate change, migration, women empowerment, urbanization, mental health
ऐसा टॉपिक है जो दोबारा पूछा जरूर जा सकता है। देन स्टार्टअप्स एमएसएमई, हमेशा इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। देन एप्लीकेशन ऑफ एआई, पिछली बार इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, यू नेवर नो इस बार ऐसे ही आ जाए, right? So whenever you are practicing essay topics, then do consider these themes, very important themes. Climate change very important, migration very important, women, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन को लिंक करके, so you never know this time they can ask, they can link climate change with the women topic, right? So you need to be well aware of the fact कि how climate change is going to impact agriculture, how climate change is going to impact the financial institution sector, right? So उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप ट्रांजिशन रिस्क के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज आरबीआई ने एक बार में इन सब चीजों के बारे में बात करी थी, right? So you need to be well aware of all these things, ठीक है? So climate change पढ़ लेना, अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना सर, टाइप करके प्रैक्टिस करना है, ओके? एंड रही बात डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो, आपको उससे हेल्प हो सकती है अगर आपका मन करे तो। बाकी मेंटल हेल्थ पे कुछ कंटेंट जरूर तैयार रखो, बिकॉज इस साल बजट में भी गवर्नमेंट ने बोला है that we are going to set up NIMHANS 2 for northern India, then they are going to upgrade 2 regional center of Ranchi and I think Tezpur, है ना? तो very important, सब mental health के लिए कर रहे हैं हम लोग, so it's very important, it's very important that you should have content for mental health issue as well, ठीक है? एंड एप्लीकेशन एआई वेरी हॉट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बनाइजेशन, ये तो गिने चुने आए दिन आते ही हैं, ठीक है? So these are the things that you need to do after 90 days everyone, okay? Now that's it for this particular video everyone. Now the thing is, if you have watched this video but if you're and if you're not implementing it, then इसका कोई फायदा नहीं होता, right? So मेरा तो यही मानना है कि वही वीडियोस देखो, वही चीजें पढ़ो जिसको आप दोबारा से पढ़ सको, जिसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको, जिसको आप रिवाइज कर सको, राइट? सो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, देन आई जस्ट वांट योर प्रॉमिस कि ओके मैम, नाउ आई विल इंप्लीमेंट दिस प्लान in letter and spirit. I will definitely put my 100% of the effort, because without implementation, obviously phase 1 हो, phase 2 हो, interview हो, हम कुछ भी नहीं ढंग से कर पाएंगे, right? So it's very important everyone that you are implementing the things that are mentioned in this entire plan, okay? And yes, छोटी मोटी चीजें changes आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, okay? All the very best. That's it for this video. God bless you and always remember, सब बहुत अच्छा होता है अगर हम सही प्योर इंटेंशन के साथ मेहनत करते हैं, ओके? ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।